Takkar is a year-long test series program with 146 tests. This program is specially designed for UPSC, CSC, prelims and mains exam. It has 4 phases. Phase 1, pre-cum-mains test. In phase 2, we conduct tests exclusively for the prelims exam. And in phase 3, we will conduct tests for mains exam. And in phase 4, we will help you to prepare for interview through interview guidance program. So why to wait? You can enroll for it now. Okay, welcome everyone. So this is CSAT 2024 batch by Lukman IAS. You must be knowing that Know Your Progress batch we are running. So yesterday we had one class. So today in this lecture my idea is to discuss the basic concepts because we realize that some student they lack basic concepts. So this is what, and mainly we will discuss the concept of number system. Fine. So I'm assuming you are starting from scratch, and just if you're not able to connect anywhere, just please tell me. Fine. Sorry. First, you must know something about CSAT. In CSAT, almost let's say 80 questions are there, right? Around 50 to 53 questions you will get off. Even 50, I will say around 53 plus, you will get from quant and LR part. Okay, now it's very difficult to say it is logical reasoning or data interpretation, but the overall point is something of quant and something of logical, right? And at one time it is even different, it is difficult to segregate quant and logic. Fine, so this is our objective, that we want to assure you that if you attend this lecture, you will solve almost 80% of these questions just by attending these lectures. That is a short success. Fine. Let's start with the see, it is not mathematics. Mathematics is different. Quant and reasoning is different. Let's say there are some aspirant who was engineer, they could also not qualify CSAT. Why? Because the aptitude is different, the mathematics is different. Fine. So this is our objective. Now let's start with the number system. Number system, let's say I start with what is the numbers, what are rational number, what is real number, what is natural number, whole number, rational number, irrational number. Then one can also go into the algebraic concepts. But you have to understand, if I tell you the definition of rational number, that it can be expressed in the form of P upon Q. इसका यूटिलिटी कोई बहुत ज्यादा सीसेट एग्जाम में नहीं होगा. उसका यूटिलिटी कहाँ होगा? पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर किस तरह के होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर को किस तरह और इरेशनल नंबर को किस तरह डिफरेंशिएट करोगे, उनके क्या किसी क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो लेट मी स्टार्ट विद, सपोज दिस इज नंबर लाइन. ठीक है, इसमें 0 होता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव नंबर, राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, लाइक दैट टिल इंफिनिटी. सेम वे you can go negative side till infinity. Any problem so far? This is number line. Quick problem? Okay, wonderful. First thing you must know the real numbers. Real numbers. Real numbers. Real numbers is any number which can be drawn on the number line. Concept clear है? So कोई भी number है जो कि number line पे draw हो सकता है. Okay. Let's say this number might be, let's say I am trying to say this number might be 0.3378 something. I do not know. But if that number can be drawn on the number line, it is called real number. ठीक है? Any problem? Wonderful. Now, second concept you must know, natural numbers. Okay? Natural numbers are see, जो मैथमेटिशियन है वो इसको रिग्रेसली स्टडी करते हैं, वो उसी सेट में आपके लिए जरूरत है. आपको नेचुरल नंबर्स में क्या पता करना है? 1 से लेके 1, 2 से लेके इंफिनिटी तक, राइट? दीज आर द नेचुरल नंबर्स. ओके, क्लियर है? आपका वही 1 है, 2 है, राइट? ये सब नेचुरल नंबर्स हो गए. फाइन. होल नंबर क्या होते हैं? इसमें आप 0 और ऐड कर लीजिए. होल नंबर्स हो गए आपके 0 प्लस नेचुरल नंबर्स. फाइन. एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यानी इतना है. इसके बाद आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड प्राइम नंबर. ठीक है.
So we will start with the rational number. Let's say we generally say rational number is a number. आपको यानी क्लास 8th 10th में किस तरह पढ़ा जाता है? रेशनल नंबर इस तरह बोलते हैं, रेशनल नंबर is a number which can be expressed in the form of p by q. Okay, p by q where q is not equal to 0 और ये इंटीजर्स है. ठीक है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं. 2/3 एक रेशनल नंबर है. ओके, 7/8 एक रेशनल नंबर है. दिस इज फाइन. लेकिन इससे क्या सी सेट में क्या हेल्प मिल रही है? नहीं मिल रही, राइट? ओके, तो एक तरीके से फैक्ट हो गया. इसकी यूटिलिटी आपको इसको एक और लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. सो जो रेशनल नंबर नहीं, जो एनी द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, दोज विल बी इरेशनल नंबर. ओके, सो इरेशनल नंबर भी की डेफिनेशन भी क्लियर होगी आपको. इरेशनल नंबर which are not रेशनल नंबर. कोई प्रॉब्लम इसमें? सो यस, बट अगेन इसकी फिर यूटिलिटी कहाँ है आपकी जो क्वेश्चन में जरूरत होगी वो आपको ध्यान से सुनना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. लेट्स से आप पहले ऑब्जर्व करो कुछ. लेट्स से देयर इज अ नंबर 4.2. ओके, कैन आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 42/10 और 21/5? कोई प्रॉब्लम? क्या है? रेशनल नंबर है ये. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p by q फॉर्म. Let's say now I write a number 33333 and it is continuous. This means it is non-terminating or infinite. इसको क्या बोलते हैं? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, 333 चलता रहेगा. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 फॉर्म में. एनी प्रॉब्लम? तो दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर. तो आप ऑब्जर्व करो. ओके, मेरा डेसिमल था 4.2, उसको भी मैं इससे लिख सकता हूँ. ये रिकरिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है. दिस मीन्स ये भी रेशनल नंबर है. लेट्स से मेरे पास इस तरह का नंबर है 0.427 और उसके बाद 666. ओके, देन ये भी है. ये आपको क्या लग रहा है? इट इज व्हाट इट इज. ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? सी अगेन, यहाँ पे जो रिकरेंस था, राइट, जो रिपीट हो रही थी डिजिट, वो डेसिमल के तुरंत बाद स्टार्ट हो गया. यहाँ पे क्या हुआ है? इसके 3 स्पेस के बाद स्टार्ट हुआ. दे नंबर आर आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सो आपने देखा रेशनल नंबर रिकरिंग वाले भी, जिसमें रिकर होता है वो भी रेशनल नंबर होते हैं, जिसमें कुछ गैप के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वो भी है. लेकिन इरेशनल नंबर में क्या है? इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड, यानी वो रेशनल नंबर हो गए. लेकिन वो तो ठीक है, सी वो तो एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया. लेकिन रेशनल नंबर इटसेल्फ क्या है? तो रेशनल नंबर में आपने क्या देखा? एक इस तरह के डेसिबल जो इस तरह यानी हो इस वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें रिकरिंग है यानी इनफाइनाइट है, वो भी आपके रेशनल नंबर है. इस तरह का यानी दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आफ्टर अ गैप, दीज आर आल्सो रेशनल नंबर. सो नाउ यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर. प्लीज राइट डाउन. non-terminating and non-recurring. So I'm also writing it irrational number, non-terminating, right? Non-terminating and non-recurring. This is very important. ये सी सेट के स्टूडेंट्स के लिए ये कंसेप्ट जाना ज्यादा जरूरी है, rather than saying that rational numbers can be expressed in form of p by q. उससे क्या हो रहा है? ये चीज क्लियर है? आप मुझे सोच के बताओ, दिस नंबर इज नॉन रिकरिंग, दिस नंबर इज दिस इज रिकरिंग, राइट? क्योंकि बार बार 3 बार बार आ रहा है. ये नंबर भी क्या है? रिकरिंग है, 666 बार बार आ रहा है. तो कोई ऐसा नंबर बताइए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा, और नॉन रिकरिंग का मतलब, या नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? उसमें डिजिट हर बार चेंज होती रहेगी. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो पाई होता है, ओके, पाई की जो कुछ लोग तो पाई को एक्सप्रेस कर देते हैं 20, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. आप ध्यान रखना, पाई की जो 22/7 जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट है, राइट? उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14 इस तरह, दैट इज इरेशनल. उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आपके नंबर भी क्या है?
एक तो इनफाइनाइट तक जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और वो नॉन रिकरिंग हो गया, नहीं वो सेम ऐसा नहीं होगा 3.14 3.14, नो नो, एवरी टाइम यू विल गेट ए डिफरेंट डिजिट. सो दैट इज ए एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर. ठीक है, दूसरा एग्जांपल और लिखिए इरेशनल नंबर के एग्जांपल. √2. ओके, √2, राइट, इरेशनल नंबर. √3, E, I. Okay, and you can also write this number 7 √3. These are the examples of irrational number, and you know the example of rational number. Okay, now आपको सीसेट में कौन सी चीज हेल्प करने वाली है, ये कि आपको पता होना चाहिए इरेशनल नंबर था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ठीक है, अब एक इसमें यू नो बिफोर आई मूव इनटू व्हाट आर प्राइम नंबर्स, सपोज कीजिए आपको कैलकुलेशन में कहीं इस तरह का नंबर आता है, मान लीजिए इस तरह का नंबर है 0.55555. ओके, और ये दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइट तक जा रहा है. इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/9. ओके, ये कैसे आएगा आपको, नहीं हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन आपको जो फ्रैक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए. 1/2 का वैल्यू, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह करके 1/10 तक वैल्यूज पता होनी चाहिए. तो देन यू विल रियलाइज 1/9 इज हाउ मच. 1/9 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.11111 इनफाइनाइट. सो that's why you can make it, you know. So what you will say, into 1/9 is equal to 5 into 0.111. So this will be equal to 0.555. Got it? Now, see what is our objective here. We are trying to convert a recurring number into fraction form. See, इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये यदि टूल आपके पास है तो आपका बहुत सारा कैलकुलेशन टाइम सीसेट में बच जाएगा. और इनफैक्ट कैलकुलेशन टाइम ही नहीं, आपके पास वो एबिलिटी आ जाएगी कि आइडेंटिफाई करने की कौन सा ऑप्शन होगा. फॉर एग्जांपल आपके कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे √3 हमने क्या बोला कि रेशनल नंबर है. क्या है? इरेशनल नंबर. सो लेट्स से, और इरेशनल नंबर और जो रेशनल नंबर है, कभी कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि रेशनल भी और रेशनल हो. इट विल नेवर हैपन. ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ PYQ and irrational number are different. So what you will do, let's say you will remember this thing that rational numbers and irrational number do not mix. यदि एक नंबर क्या है रेशनल तो वो इरेशनल नहीं हुआ, इरेशनल है तो रेशनल नहीं हुआ. क्लियर है? हमेशा याद रहेगा. अब इसका इस फैक्ट का आपको एग्जाम में कहां यूज होगा, जो कि बहुत बार होता है. लेट्स से दे हैव गिवन एन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय 3/4 साइड स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, फाइन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अब आपको पता है √3 इसके अंदर है. √3 क्या है? इरेशनल नंबर है. सो एंड दिस इरेशनल नंबर, सी आप इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, मान लीजिए कोई आप साइड भी रखते हो, साइड मान लीजिए आपने 2 रखा, तो लेकिन ये जो इरेशनल पार्ट है ये आपका कहीं ना कहीं आंसर में दिखना चाहिए. यदि क्वेश्चन में कहीं √3 दे रखा है, जो यू नो इरेशनल नंबर दे रखा है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करोगे आंसर में भी कहीं. तो व्हाई आई एम टेलिंग दिस, यू नो दिस इज नॉट ट्रिक, यू नो इसके लिए पूरे फाउंडेशन होना चाहिए. लेकिन यदि आपको पता है कि इरेशनल नंबर मेरा क्वेश्चन में है तो वो आंसर में कहीं ना कहीं रहेगा, इससे आपके बहुत सारे ऑप्शन वही एलिमिनेट हो जाएंगे. फाइन, यू विल रिमेंबर इट कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स डू नॉट मिक्स. एंड इफ you observe a irrational number in the question, so try to identify that irrational number even in the options. Okay, so see why I'm telling, आपको लिमिटेड टाइम में काम करना है इसको, तो ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी. नाउ आपके हाँ, ये हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, तो मान लीजिए हमने 0.55 तो ये कन्वर्ट कर लिया. आप ऐसा कीजिए, एक नंबर और लिखिए, 3.24
राइट, ये रिकरिंग है। इसको हम किस तरह भी लिख सकते हैं, बार, whenever I put bar इट मीन्स कि वो चीज रिपीट हो रही है। ओके, इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये करना है। सेम कंसेप्ट है। सी पॉइंट, जैसे हमने 0.55 के लिए क्या किया था, हमने क्या किया था 5/9 कर दिया था। यहां पे कितने टर्म्स रिकर हो रहे हैं, 2 रिकर हो रहा है, राइट। सो हम 3 वाला पार्ट तो ठीक है, 3 वाला पार्ट ही आ गया। 24 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 99 से। ओके, तो इफ यू विल एक्सटेंड दिस लॉजिक, लेट्स से देयर इज अ नंबर 5.678 लाइक दैट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5.678 बार। इसको बताइए आप किस तरह कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में। वेरी गुड, 5,6,7,8/999। आपको लग रहा होगा व्हाई वी आर शेयरिंग दिस थिंग। व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन यू विल फाइंड इससे आपका काफी यानी वर्क आसान हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। You would be able to convert numbers, this rational numbers into fraction. Okay, now please write down one more number. मान लीजिए इस तरह का नंबर है। Okay, I will take this number 0.43524242424242. ये भी रिकरिंग है। कैन यू सी दैट 424242 आर रिकरिंग, बट इट इज नॉट रिकरिंग, यहाँ पे ये रिकरिंग नहीं है, बट ओवरऑल दिस नंबर इज रिकरिंग। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। टेल मी, यदि मान लीजिए सिर्फ 0.4242 होता तो आप क्या करते, 42/99 करते हैं। ओके, नाउ व्हाट, हाँ नहीं 535 क्या है, तो 435 है ना। आपको क्या करना है, रिमेंबर दिस थिंग, अभी इसको डिस्कशन करने में तो ओके, जस्ट प्लीज आई थिंक यस 435,999,000। ओके, ये होगा। इवन आई एम डूइंग इट आफ्टर मैनी, बट सी यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ऐसा नहीं कोई रट्टा मानना है, लेकिन ये जो टूल है आपका बहुत बार यूज होगा। आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो ये जो 3 है ये तो रिकर नहीं कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है। उसके बाद 424242 रिकर कर रहा है, तो कितने डिजिट रिकर कर रहे हैं, 2 डिजिट रिकर कर रहे हैं। ओके, तो पहले आपका जो आप थी, इसका लॉजिक क्या है, व्हाट आई हैव डन 435 माइनस व्हाट आई हैव डन, जस्ट अ मिनट, 435 माइनस 435। ओके, जस्ट आप ऐसा करो, ये थोड़ा सा टिपिकल है, दिस फॉर्मूला इज लिटिल टिपिकल, बट आप इसका लॉजिक समझो। पहले ये चीज आप पे ध्यान कर रहे हो, राइट। तो पहले आपने ये नंबर लिखा 43542, इसमें से आपने क्या डिलीट कर दिया है, जो कि नॉन रिकरिंग पार्ट है। 435 नॉन रिकरिंग पार्ट है, ठीक है। सो इतना समझ में आया। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, आपने वो पार्ट डिलीट किया, तो अब आपके पास, अब आप किस पे फोकस कर रहे हो, रिकरिंग वाले पार्ट पे। और रिकरिंग वाले पार्ट पे आप क्या करते हो, जस्ट रिमेंबर कितनी, यानी आप जितने भी रिकर हो रहा है उतनी 0 लगाओगे, और जितने कांस्टेंट डिजिट थे उतने 9 लगाओगे। इसको यानी याद कर लो, बिकॉज इफ इसके हम लॉजिकल फाउंडेशन में जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। बट ये टूल अभी आपके पास है एग्जाम में, तो you will save, I can say in exam you will save at least 5-6 minutes. Fine. Okay, now given this understanding, your rational numbers are complete, irrational numbers are over. एक चीज और लिख लीजिए आप, नेचुरल नंबर्स आर, नेचुरल नंबर क्या थे, 1 to infinity, right? 1 2 3 4, right? So please write down natural numbers is equal to 1 plus prime numbers. नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हम दे चुके हैं, राइट, 1 2 3 till infinity, but in another form you can also express them 1 plus prime plus composite number. Composite numbers
ओके, ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप्स कम. व्हाट इज प्राइम नंबर? एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सी, knowing rational number, irrational number and prime numbers is very very important. ठीक है. नाउ वी विल मूव इनटू प्राइम नंबर. सिंपल सा डेफिनेशन है प्राइम नंबर का. व्हाट इज द डेफिनेशन? ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर. लेट्स से 7 एक नंबर है, या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा या 7 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 इज ए प्राइम नंबर. बट दिस इज डेफिनेशन. सबसे जो मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इस तरह सोचोगे जैसे कोई बिल्डिंग होती है. बिल्डिंग किससे बनी होती है? ब्रिक से बनी होती है, राइट? ब्रिक या स्टोन, राइट? सो दोज आर जो नंबर्स जो जिससे बने उसका जो फाउंडेशन स्टोन है, व्हाट इज दैट? प्राइम नंबर्स. ऑल नंबर्स आर मेड ऑफ प्राइम नंबर्स. आप बोलोगे कैसे? लेट्स से कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैं आपको पहले प्राइम नंबर बता देता हूं. 2 is the only even prime number. 1 is not a prime number. Always remember, 1 is not a prime number. 2 is the only even prime number. ठीक है? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Right? This way you will continue. Let's say इसमें कोई बीच में नंबर ले लेते हैं 4. 4 किससे बन जाएगा? 2 into 2 से बन जाएगा. 2 is also prime number, right? Let's say 6. 2 into 3 दोनों प्राइम नंबर हैं. और कोई नंबर बोलिए, जैसे मान लीजिए 28 ले लेते हैं. ओके, ठीक है. 2 into 7, 3 of them are prime number. So what see, ये बोलना कि प्राइम नंबर इज ए नंबर which can be divided by 1 and itself, it is just a definition, but this is your understanding कि using prime number you can form any number, all natural numbers other than 1, because 1 see, अब 1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया है प्राइम नंबर में, उसका एक अलग we will not go into that. Clear है? Now please write down few things. आप ऐसा करो, पहले प्राइम नंबर्स लिख लो. प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. इसको आप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट टाइम में भी नहीं पता है, बट यू मस्ट नो देम. अभी लेट्स सी व्हाट इज द यूटिलिटी. कि आप मान लीजिए प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं बिटवीन 100, कितना आएगा? लास्ट प्राइम नंबर क्या है? 97 ही है, राइट? 97 इज द लास्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100. Let's say this is written in your copy and you are observing it 3-4 times, तो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा. तो जो क्वेश्चंस है ना प्राइम नंबर के, तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे. सो इट माइट लुक लाइक ए tedious exercise, but this thing you must know. You must note in your copy what are the prime numbers between 1 and 100. Okay? So, okay. अब ये बताओ 61 एक प्राइम नंबर है नहीं है? 61, 71, 91 एक प्राइम नंबर है, राइट? 61, 71. सो अब ये पॉइंट आता है कि मान लीजिए कोई नंबर प्राइम है नहीं है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई? ओके, उसका एक मेथड है. व्हाट इज द मेथड? दैट मेथड इज, लेट्स से कोई भी आपने नंबर ले लिया. ओके, लेट मी टेक नंबर लाइक 239. 239 एक नंबर लिया. यू वांट टू आइडेंटिफाई वेदर दिस नंबर इज ए प्राइम और नॉट. आप क्या सोचोगे? ओके, फिर ह्यूमन माइंड है, किस तरह सोचेगा? ओके, 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा. आप बोलोगे ओके, सम ऑफ डिजिट भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नहीं 4 से नहीं हो रहा है, तो आप नहीं, यू माइट, इसमें टाइम लग जाएगा. सो एक मेथड है. व्हाट इज द मेथड? व्हाट यू विल से कि इसका स्क्वायर रूट ले लो. इसका स्क्वायर रूट, आप जानते हो 15 का स्क्वायर रूट कितना होता है? सॉरी, 15 का स्क्वायर 225. 16 का स्क्वायर बताइए. हाँ 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर. ये सब पता होना चाहिए आपको, राइट? 361, 400,
256. ओके, ये सब नंबर आपको पता होने चाहिए. ओके, नाउ व्हाट माय पॉइंट इज, सी आपने इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे ये नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है, 15 और 16 के बीच में लाई कर रहा है. ओके, वी विल नॉट गो इनटू स्क्वायर नाउ, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. व्हाट वी विल डू, सो वंस यू ऑब्जर्व दैट दिस नंबर, इसका जो स्क्वायर रूट है, क्योंकि 15 से तो सी 15 का स्क्वायर क्या था 225, राइट, 225 से बड़ा है और 16 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये नंबर क्या है 15 और 16 के बीच में लाई करेगा. तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द लार्जेस्ट नंबर, जो इससे बड़ा वाला नंबर है उससे, उस नंबर से जितने भी कम वाले प्राइम नंबर्स हैं. ओके, मान लीजिए 16 से, अब ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, 16 से लेस वाले प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं, 2 एक, ठीक है, 3 5 7 11 13. ओके, 15 प्राइम नंबर नहीं है, फिर बाद में बड़ा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें 16 से नीचे है. यदि इस नंबर में से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, देन व्हाट यू विल चेक, यदि 239 इसमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर क्या होगा, प्राइम होगा, अदरवाइज नहीं होगा. यू गॉट माय पॉइंट. दिस इज द ट्रिक. दिस ट्रिक, यू नो, आई विल नॉट से ट्रिक, दिस इज ए रूल और मेथड, एंड दिस यू मस्ट रिमेंबर. क्या करोगे, कोई भी नंबर है, ओके, कोई भी नंबर है, लेट्स से मान लीजिए 401 लिया. ओके, 401 चेक करना है प्राइम नंबर है नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर रूट लोगे. आपको पता है ये 20 से ज्यादा है और 21 से कम है. 21 का स्क्वायर क्या है 441. ओके, उससे कम है और ये 20 से ज्यादा है, तो इसके बीच में लाई कर रहा है. तो आप क्या करोगे, 21 से कम वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके लिए चेक करोगे वेदर दैट 401 इज डिविजिबल बाय दो. सो आप क्या कहते हैं, 30 तक तो आपने लिख ही लिया था, फिर आप 17 19, उसके बाद तो बड़ा हो जाएगा 21 से. आप यदि 2 से लेके 19 तक के नंबर्स में यदि 401 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 401 क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा. इन दिस केस 239 इज ए प्राइम नंबर. ओके, क्योंकि देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है नहीं, 3 से जो डिविजिबिलिटी रूल है दैट आई विल टेल यू, 3 से कोई भी नंबर जब डिवाइड होता है जब उसके सम ऑफ डिजिट्स भी, लेट्स से 111 है, इसके सम ऑफ डिजिट क्या है 3, तो ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा. इसी तरह 227 कितना हो गया, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. ओके, आप इसी तरह 7 से चेक करोगे, 7 से डिवाइड है 239 नहीं है, 7 3 21 एंड 29 डिवाइड नहीं होगा. 11 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड, दिस मींस दिस इज ए प्राइम नंबर. फाइन. ओके, नाउ किसी के माइंड में ये भी आ सकता है, वो बहुत नेचुरल क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, व्हाई वी हैव चेक्ड ओनली फॉर द प्राइम नंबर्स, 16 से पहले के सारे नंबर्स क्यों नहीं चेक किए. अब इसमें जैसे वेरी वेरी फाइन लॉजिकल क्वेश्चन, ह्यूमन माइंड है ना, नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपने एक रूल बनाया है, कोई भी नंबर है उसको चेक करना है वेदर इट्स ए प्राइम और नॉट. व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट यानी जो लार्जेस्ट इंटीजर है उससे नीचे के सारे आप नंबर्स, उससे कम जितने प्राइम नंबर्स हैं उसके लिए चेक कर रहे हो. यदि उससे डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो नंबर प्राइम, यानी नहीं हो रहा है तो प्राइम नंबर है. ठीक है, नाउ सिर्फ प्राइम नंबर के लिए क्यों चेक कर रहे हैं, उसका सिंपल सा आंसर ये है, लेट्स से मुझे 4 के लिए भी चेक करना होता, मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 के लिए भी चेक करता हूँ और 6 के लिए भी चेक करता हूँ. ओके, यदि मान लीजिए कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, राइट, तो वो 4 से तो डिविजिबल होगा ही होगा नहीं. सपोज सिमिलरली इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 तो वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा. इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे 8 के लिए भी मुझे चेक करते हैं, तो यदि मान लो 8 से डिविजिबल है तो वो 2 एंड 4 से यानी 8 से डिविजिबल है तो 2 एंड 4 से भी होगा, राइट. सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट टेकन नंबर्स अदर, वी हैव टेकन ओनली प्राइम नंबर्स, एंड द लॉजिक इज अगेन द सेम, ऑल प्राइम नंबर्स आर द फाउंडिंग स्टोन ऑफ ऑल द नंबर्स. क्योंकि आपका जो ये लग ही रहा है 4 6 और 8 है, लेकिन उसमें ऑलरेडी प्राइम नंबर से बना हुआ है. 8 किससे बना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है. ओके, इसी तरह मान लीजिए 12 भी होता, 12 क्या है 2 इंटू 3, दोनों प्राइम नंबर है, राइट, 2 एंड 3. सो इफ यू हैव चेक्ड ओनली फॉर द प्राइम नंबर्स तो उसके लिए ऑलरेडी चेक हो जाता है. फाइन, कोई प्रॉब्लम, वंडरफुल. सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्या कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कीजिए 100 एंड 200 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं,
उसको जरूर लिख लीजिए. I will just say, please write down. 101 prime numbers between 100 and 200. Prime numbers between 100 and 200. 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 141. Sorry, 141 नहीं है. 141 is not a prime number. Yes. 149, 151, 157, 163, 167, 173, okay, 179, 181, 191, 193, 197, 199. Okay. Now you have written all the prime numbers between. See, again इसको रटना नहीं है. What you can do? इसमें आप अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन इसको 101 को 101, 151, 181, 191 एंड 199. सी वाई अंडरलाइनिंग? ये जो एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं इसमें ये आई एम नॉट सेइंग नो, ये 181 बहुत टाइम यूज होता है एप्टीट्यूड एग्जाम में. जिस एस्पिरेंट को पता है कि प्राइम नंबर है तो वहीं पे ऑलरेडी उसको ही विल हैव कॉन्फिडेंस, ही और शी विल हैव कॉन्फिडेंस, राइट? सो you might forget all the prime numbers between 100 and 200, but you must remember 101, 151, then 181, 191 and 199 is a prime number. ठीक है, these are the prime numbers. Okay, ये नहीं आपको नहीं भूलना चाहिए. ठीक है. Now what you can do, just write one more thing. Okay. कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट प्राइम नंबर्स, वो भी आप लिख सकते हो. फॉर ए प्राइम नंबर p ग्रेटर देन 3, लिखिए, फॉर ए प्राइम नंबर p इज ए प्राइम नंबर एंड ग्रेटर देन 3. ओके, p स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट. फॉर ए प्राइम नंबर p ग्रेटर देन 3, आप ये चेक कर सकते हो किसी के लिए. मान लीजिए आप 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 5 है. 5 इस पे रखा, 25 माइनस 1 24, उससे डिविजिबल है. 7 रखा, 49 माइनस 1 48 बाई 24, ये सब डिविजिबल है. सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. फॉर ए प्राइम नंबर p ग्रेटर देन 3, दिस विल ऑलवेज होल्ड. फाइन. ओके, वन मोर थिंग. Okay. Prime numbers after 3. See, जो भी एक और ट्रिक है कि कोई नंबर आपको दे रखा है, आपको पता लगाना है कि वो प्राइम नंबर है नहीं है. तो प्राइम नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 6n plus 1, 6n plus 1 plus minus 1, provided any prime number greater than 3. That number has to be greater than 3, राइट? 3 से बड़ा होना चाहिए वो प्राइम नंबर, उसके लिए ये होल्ड करेगा. अब अच्छा इसको चेक कीजिए. लेट्स से वी सेड 181 इज ए प्राइम नंबर. ओके, सो इट इज होल्डिंग. यस, 6 इंटू कितना 30, कितना हो गया 180 प्लस 1. तो ये 6n प्लस 1 के फॉर्म में आ गया. ओके, देन इसी तरह नहीं आप और भी नंबर्स के लिए कर सकते हो. 113 के लिए, ओके, 113 के लिए चेक करके देख लीजिए. वही आपका 6n किसमें, यानी 6n माइनस वाले फॉर्म में आ जाएगा. ओके, सो बट यू मस्ट रिमेंबर अदर अपोजिट साइड इट विल नॉट हैपन. लेट्स से you say see if you identified a prime number, then it will take the form of 6n plus minus 1. उल्टा नहीं होगा कि कोई भी नंबर है वो 6n plus minus 1 फॉर्म में वो प्राइम नंबर होगा. नो, that will not. So always remember when you are given the prime numbers, then only you say
that this number will take the form of 6n plus minus 1. Fine. Okay. Now, what you can do, you can write the divisibility rules. Let's say you have to identify whether a particular number is divisible by 2, 2 to 13. That rules you have to write. Divisibility rules. Okay. So first let's for 2 and 5. 2 and 5 के लिए rule simple है. If the unit digit is divisible by 2 or 5, then the number is divisible by 2 and 5, right? So what I meant to say, ऐसा नहीं कि वो यदि see let's say एक number है 12, इसका unit digit है 2, तो ये 2 से divisible है, तो वो आपका यानी नंबर भी यूनिट डिजिट 2 से डिजिट तो नंबर भी 2 से डिजिट होगा. सिमिलरली 5 के लिए लेट्स से कोई नंबर है 7, 8, 9, 11 बट 5, बट द यूनिट डिजिट डिजिट बाय 5, so this number would be also divisible by 5. So this is for 2 and 5. For 3, what you will say, if the sum of the digits is divisible by 3, then the number would be divisible by 3. Let's say कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए. अभी just now we saw 3, 3, 3. Okay. इसमें sum of digit कितना हो गया? 3 plus 3 plus 3, 9. So this number has to be divisible by 3. And you know what will the quotient? 1, 1, 1. Fine. 4 के लिए see अब रूल तो ऐसे, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा, कोई नंबर यदि 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो 4 से कैसे डिविजिबल हो जाएगा. ओके. सो बट एनीवे फॉर 4 व्हाट यू डू, you check for the last 2 digit. You can please write down. If the last 2 digit for 4, if the last 2 digits are divisible by 4, then the number is divisible by 4. Fine. आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 624. 624 तो फिर भी सिंपल लिखा है, 924 लेते हैं. आप चेक करो, 924 would be divisible by your 4 because your last 2 digit are divisible by 4. Fine. Okay. 6 के लिए क्या रूल है? 6 के लिए see again आपको वो चीज याद रखना है कि प्राइम नंबर्स आर द फाउंडेशन स्टोन. So you know 6 is equal to 2 into 3. Sorry. So if the number is divisible by 2 and 3 both, then the number has to be divisible by 6. So आपको 2 का रूल पता है, तो आप क्या करोगे? 6 के लिए चेक करना है तो आप 2 बार लो, तो एक बार चेक कर लो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि सम ऑफ द डिजिट इज divisible by 3, राइट, और ये यूनिट डिजिट 2 से, तो आपको 6 से divisible हो जाएगा. Fine. This is the rule you have to remember. Now coming to the 7. See 7, 11 and 13 के लिए एक ही ऑलमोस्ट एक रूल लगता है. आप अच्छा बिफोर वी गो इनटू 7, 11, 13 वी विल टेक अप 8, 9 एंड 10 को कर लेते हैं, फिर 7, 11, 13 करते हैं. 8 के लिए क्या होगा बताइए? 8 के लिए क्या रूल लगाएंगे आप? 8 के लिए इफ द नंबर इज सी 8 के लिए अगेन आप सोचोगे और 8 को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 into 2 into 2. Okay. So how this logic extend? If the last 3 digit, unit, 10 and 100. Let's say I'm writing a number 17256. If the last 3 digit are divisible by 8, then the number would be also divisible by 8. Okay. So I'm just writing it. Divisibility by 8 if the last 3 digits of a number are divisible by 8, then the number is also divisible by 8. Okay, so please write it down.
12 के लिए 12 को किस तरह आप लिख सकते हो? 2 into 3. Okay. Now, see, अब इसमें आप ये नहीं करो कि see like 6 you cannot apply that rule कि आपका 3 के लिए है and 2 से divisible है तो 12 से divisible. No, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है. What you will write for 12? If the number is divisible by 3 तो रहेगा, 3 तो प्राइम है, लेकिन रिमेनिंग जो है, 6 के लिए आपने क्या बोला था? 6 के लिए आपने बोला था if the number is divisible by 2 and 3 both, 3 and 2. Here what you will check for? 3, not only 2 but 4. If the number is divisible by 3 and 4, then the number will be divisible by 12. And 4 का आपको रूल पता ही है. 4 का क्या रूल है? लास्ट के 2 digits have to be divisible by 2. Fine. Now come to the 11. This is an interesting number. See, before we discuss the rule, पहले आप ऑब्जर्व करो, कोई भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो. Let's say I multiply 62 into 11. So how the multiplication goes? 62, 26, and how you write it? 26682. Fine. This is the way you write. So what you are doing? Indirectly you are adding the two corner digit and writing the sum in between. Okay. So ये इस तरह ये यदि आपके माइंड में ये थॉट है तो आपके बहुत सारे कैलकुलेशन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में. 11 लेट्स से 45 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो यू विल सिंपली राइट 495. ओके. नाउ कमिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, व्हाट यू विल से इफ द ऑड एंड इवन, आप क्या मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, ओके, मान लीजिए नंबर है, तब उसके ऑड वाली प्लेसेस, मान लो ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ऑड, ये इवन और ये ऑड प्लेस. ओके, लेट्स से ये इवन हमने ले लिया, तो आप क्या करोगे, पहले ऑड वाली जो प्लेसेस है उनको ऐड करोगे, राइट. ऑड वाली प्लेसेस है और इवन वाली प्लेसेस उनको ऐड करोगे, जो डिजिट्स हैं यहाँ पे. लेट्स से मैंने कुछ भी डिजिट ले लिया, सॉरी, ओके, 7, 4, 2, 6, 8, 5. ओके, ये आपने नंबर ले लिया. इसमें आपके ऑड में कौन कौन सी प्लेसेस है बताइए. ऑड में 5 and 8 13, 5, 8 13 और 4 17, राइट. इवन में क्या क्या है, 7, 2 9, 9 and 6 15. ओके, तो कितना डिफरेंस आया. आप क्या करोगे, उन दोनों का डिफरेंस लोगे, जो डिफरेंस है कितना आया 2. यदि वो डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, सो आपका क्या हो जाएगा, नंबर 11 से डिविजिबल होगा. तो इन दिस केस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11. व्हाट आई कैन डू टू मेक इट डिविजिबल बाय 11, आई कैन डू दिस थिंग. लेट्स से आई मेक इट 4, तो ऑड तो सेम रहेगा, ये कितना हो जाएगा, इवन वाला 7 to 9, 9 4 13. नहीं, अब अभी भी नहीं हुआ ना. इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैंने कितना बनाया था, 8 बना देता हूं. ओके, सो नाउ इट विल बी 17. ओके, देन इट विल बी 0. देन दिस नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 11. यू कैन चेक, आप वेरीफाई करोगे ना, तो आप चेक करोगे तो इसको ये 11 से डिविजिबल आएगा. फाइन. सो डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है. 2 3 4 5 6, किसका बचा अब, 2 3 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया. ओके, 9 का सेम है, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, सो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9. अब नंबर आता है आपका 7 and 13 का. 7 and 13 में आप क्या करोगे, लेट्स से इस तरह का नंबर है, आई एम राइटिंग अ वेरी लार्ज नंबर, सो ऑल कंसेप्ट्स आर कवर्ड. अब 3 3 के पेयर लो, ये हो गया ऑड पेयर, ये हो गया इवन पेयर, दिस इज योर ऑड पेयर एंड दिस इज योर इवन पेयर. ओके, व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड ऑड पेयर्स, जो डिजिट्स हैं उनके ऑड पेयर्स को ऐड करोगे और इवन पेयर्स को ऐड करोगे, उनका डिफरेंस लोगे. यदि वो डिफरेंस 7 या 13 से डिविजिबल है
तो नंबर भी 7 या 13 से डिजिल होगा. सी इट्स वेरी सिमिलर टू 11 1, राइट? बट हियर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग ए पेयर ऑफ 3. यदि नंबर बड़ा है तो लेट्स से छोटा मोटा नंबर है तो हो जाएगा, लेकिन लेट्स से इस तरह का नंबर है तो इस तरह के नंबर में क्या करेगा आप? एक्चुअली यहाँ पे चलो इसको हटा देते हैं, राइट? ये 3 हो गया, ये 3, ये 3, ये 3. ओके, तो व्हाट यूर ऑड के पेयर है, ये ऑड प्लेसेस है, ये फर्स्ट प्लेस हो गया, राइट? 3 नंबर. ये इवन प्लेस सेकंड, ये थर्ड प्लेस ऑड, ये इवन. जो सम ऑफ डिजिट आएगा उसको चेक करोगे. इफ द नंबर इज, जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इज 0, फिर भी ठीक है, फिर वो डिजिल होगा. और या आपका 13 से डिजिल हो तब भी वो नंबर भी आपका 13 से डिजिल होगा. क्लियर है? सी ये कंसेप्ट आपके साथ हैं तो यू नो यू आर ओके विद यू नो यू कैन इजीली मूव इनटू. लेट्स से वी विल टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल है, क्या नंबर है? 473312. इसको चेक कीजिए आप लोग प्लीज, वेदर दिस नंबर इज डिजिल बाई 7 और नॉट. क्या करोगे? पेयर लोगे, राइट? कितना क्या जाएगा? 473 माइनस 312. कितना है डिफरेंस बताइए? 161, राइट? 161. यू विल चेक फॉर द डिजिल. 0 तो नहीं है, 0 होता तो आप इसको 7 से चेक करोगे. 7 से डिजिल है ये, राइट? सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिजिल बाई 7. फिर अदरवाइज सी इसका इन सब रूल्स का यूटिलिटी क्या है? आप यदि 7 से इसको चेक करने लोगे कितना टाइम जाएगा? नाउ some logical understanding that if you take pair odd and even pair and you subtract, so आपका जो वर्क है वो यहाँ पे सेव हो गया है. फाइन, ओके, वंडरफुल. नाउ व्हाट वी विल डू, विद दिस अंडरस्टैंडिंग आप और क्या कर सकते हो? ये हो गया, प्राइम नंबर्स आपके हो गए. प्राइम नंबर्स हो तो नहीं है, नहीं आपके ये टू स्टडी अ लॉट. ओके, आप एक चीज नोट कर लीजिए, नॉट वेरी यूजफुल बट इफ यू नो दिस फैक्ट तो कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन होता है. इफ n इज डिविजिबल बाई d and m is divisible by d, then m plus n and m minus n both are divisible by, see what you are saying, m plus n and m minus n, ये दोनों divisible होंगे किससे? You know, this will be divisible by d and this will be also divisible by d if both m and n are divisible by d. This is d. Okay, so just इसका यूटिलिटी क्या है? मान लीजिए आपको पता है कि दो नंबर्स हैं, m है और n है, वो से divisible हो रहा है. मान लीजिए 77, राइट, 33. आपको ये पता है कि दोनों 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो आपको पता है क्या होगा कि 77 माइनस 33 दैट इज 44. ये भी डिविजिबल है 11 से, दिख रहा है. 77 प्लस 33, राइट, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी आपको दिख रहा है. सो दिस इज व्हाट द यूटिलिटी ऑफ दिस थिंग. सो सी एग्जाम में आप वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन ठीक है, पता है तो अच्छा है. One more thing you can write. एक रूल होता है BODMAS का. I think you must be knowing it, but just to since this is an elementary class, basic lecture, I will tell you. इसका क्या मीनिंग है? सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करते हो. मान लीजिए आपके नंबर्स हैं, so आप ब्रैकेट ओपन करते हो, फिर डिवीजन करते हो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन. मान लीजिए आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें ब्रैकेट भी है, प्लस भी, माइनस भी. ओके, इट्स नॉट वेरी यूजफुल. आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग इट. तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज हो उसको सॉल्व कीजिएगा. सपोज कीजिए यहाँ पे 3 into 4 है एंड प्लस 5 है एंड इंटू 6, ये एक्सप्रेशन है. तो आप किस तरह सॉल्व करोगे इसको? पहले आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? 3 into 4 को, फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाओगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज बिफोर देन एडिशन. देन जो भी आएगा उसमें दोनों को ऐड करोगे. और मान लीजिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता, 7 माइनस होता, तो बाद में सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में ऑपरेट होता. ठीक है, ओके. नाउ ओके, नाउ सी इस बार भी क्वेश्चन था CSET 2023 में, वेयर दे आस्क्ड दिस थिंग. लेट्स से ऑड प्लस ऑड क्या होता है, राइट? कुछ इस तरह क्वेश्चन था. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट
आप लुकमान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहां पे हमारा डिस्कशन है सीसैट 2023 का, वहां पे आप वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन. लेट्स से odd plus odd. I'm taking any number. 7 plus 9. 16 आया. Okay. Odd minus even. Odd minus odd कर लेते हैं पहले. 9 minus 7. कितना आया? 2 आया. Okay. Odd into odd भी कर लेते हैं. 7 into 3. ये odd आया. ओके ये दोनों इवन थे. आई एम कॉलिंग इट इवन. दिस इज ऑड. नाउ सी दिस वे यू कैन मेक द एक्सप्रेशन फॉर बोथ ऑड के लिए भी इवन के लिए, बट आई डू नॉट सी एनी यूटिलिटी कि आप मान लो आप एग्जाम में क्या ये पॉसिबल है कि आप ये फ्रेमवर्क याद करके जाओ वहां पे उसको रिकॉल करके. नो नो, आई डोंट थिंक है. इतना जीएस भी पढ़ना है वो भी है. सो ओनली थिंग मेरा सी व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस. When you prepare for aptitude examination, do not try to mug up this kind of framework. इसमें क्या लॉजिकल कंटेंट है? ये तो मान लीजिए सपोज आप भूल भी जाते हो. इवन इट वाज नॉट इन माय मेमोरी कि ऑड इनटू ऑड क्या होता है, वेदर इट इज इवन और, तो वो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे. तो सी व्हाट माय पॉइंट इज, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन शैडो एंड सब्सटेंस हर एक एग्जाम में, नॉट ओनली इन सीसेट और यूपीएससी. दिस इज शैडो. तो ये सब क्या है? शैडो है. सब्सटेंस क्या है? जैसे प्राइम नंबर हमने बताया, ये जानना है कि ओके प्राइम नंबर्स आर द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ ऑल नंबर्स, दैट इज सब्सटेंस. वो अंडरस्टैंडिंग आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व. शैडो इस तरह के फ्रेमवर्क, दीज आर शैडो, राइट. इससे माइंड और फिल हो जाता है अननेसेसरी थिंग से, और उसकी यूटिलिटी कुछ होती नहीं है. सो व्हाट माय पॉइंट इज, इस तरह के फ्रेमवर्क को आप विद प्रैक्टिस आपके अंदर वो इंटरलाइज हो जाएंगे. फाइन. नाउ ओके किसी नंबर को मान लीजिए एक्सप्रेस करना हो, मान लीजिए एबीसी है. एबीसी आई वांट टू एक्सप्रेस दिस नंबर, सो आई कैन राइट इट 100 into a प्लस 10 into b प्लस c. और सिंपल भी है. मान लीजिए नंबर है आपका 437 की तरह, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 400 प्लस 30 प्लस 7. so this is the way you will remember. Let's say there is a 2-digit number xy, तो इसको आप क्या लिख दोगे? 10x plus y. Fine. So these are the basic things which you must know. Now what else? Okay, रेशनल नंबर आपका कवर हो गया है. रेशनल नंबर हो गया, ये हो गया. डिविजिबिलिटी आपको पता, डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया है. नाउ देयर आर थिंग्स लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्विन, प्राइम, ये वो सब नहीं है. उसको वो सब सीसेट के लिए जानने की जरूरत नहीं है. एंड रिमाइंडर थ्योरम, यस, रिमाइंडर थ्योरम इज इंपॉर्टेंट, बट रिमाइंडर थ्योरम वी विल टेक अप व्हेन वी विल स्टार्ट द इन द क्लास. सो दिस वाज काइंड ऑफ अ बेसिक लेक्चर कि मैंने इमेजिन किया कि कुछ नहीं पता है, ये आप लेक्चर सुनोगे तो आपको मेरे ख्याल से हेल्प मिलनी चाहिए. ओके, वन मोर थिंग which I would like to tell. फिर हम लोगों ने क्या प्लान किया है? विद इन 200 क्वेश्चन हम लोग 200 क्वेश्चन, इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, उसको डिस्कशन करने वाले हैं. और हम ये आपको लुकमान आईएएस विल प्रॉमिस दैट यू विल गेट 99% ऑफ द क्वेश्चन विच यू विल गेट इन सीसेट 2024 और 25 लॉजिकल कंटेंट वाइज इससे बाहर नहीं आएगा. सो इस आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, अपना बेसिक वगैरह बुक पढ़ लो और इस वाले मोड में आ जाओ, क्योंकि जब तक इस वाले मोड में नहीं आओगे तब तक सीसेट नहीं निकलेगा. जब तक सीसेट नहीं निकलेगा मेंस लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. फाइन. सो दिस इज वन थिंग. लेट मी सी इफ आई हैव टू से समथिंग एल्स. एलसीएम, एचसीएफ वगैरह. सी एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो एक तरीका नहीं है. लेट्स से समबडी सेज कि 2 and 4 का एलसीएम निकालो, तो मैं क्या बोलूंगा? स्कूल टाइम में क्या करते थे? 2 1 2 and 2, राइट. देन वी विल से 2 and 4 इसका एलसीएम आ गया. इससे मान लीजिए और भी ज्यादा नंबर होता, मान लीजिए 11 होता, तो यहाँ पे 11 होता, फिर हम बोलते हैं ये एलसीएम आ गया. ओके, बट दिस इज ए मैकेनिकल प्रोसेस.
ये आपके इंटरनलाइज नहीं होता है। ओके, इसी तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसको आप निकालते हो, लेट्स से 11 and 22, इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप बोलोगे कि 11 है। ओके, और स्कूल में किस तरह बताते थे, 11 into 2 और 11 into 1, तो ये कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट है, और कॉमन फैक्टर है 11 हो गया। बट सी, आस्क योरसेल्फ व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रोसेस, ये क्या मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें आपका क्या लॉजिकल कंटेंट क्या है। सो यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक, एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डिस्कस इट नाउ, बट ओके, you know, I will assure that in the next class, you know, we will discuss this concept. इसी तरह आप मान लीजिए न्यूमरेटर्स हैं, फ्रैक्शन में नंबर है, मान लीजिए 2/7 है एंड 5/9 है। इसका आपको लेट्स से इसका आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। अब ये काफी लोगों को पता होता है, क्या करते हैं वो, जो न्यूमरेटर है एलसीएम ले लो किसका, यानी दिस इज वेरी सिंपल, 2 and 5 का, और एचसीएफ ले लो 7 और 9 का। यहाँ पे आपको क्या कोशिश होना है कि इसको रिड्यूस फॉर्म में आना चाहिए फ्रैक्शन। यदि मान लीजिए 4/14 होता, मान लीजिए 4/14 होता तो नहीं, तब तो आपके एलसीएम में इसमें गड़बड़ हो सकता है, राइट। सो दिस इज योर एलसीएम। इसी तरह एचसीएफ निकालना है तो क्या करोगे आप, इसका एचसीएफ ऑफ दीज टू फ्रैक्शन यू विल राइट एचसीएफ ऑफ 2,5 अपॉन एलसीएम ऑफ 7,9। सी, ये मान लीजिए आपको पता है, आपके नोट्स में भी है, तो मुझे नहीं समझ में आता नहीं इसकी क्या यूटिलिटी है। ये तो क्या मैकेनिकल प्रोसेस है, और जो एप्टीट्यूड यूपीएससी जिस तरह क्वेश्चन सेट कर रहा है उससे सी वो इस तरह क्वेश्चन नहीं देगा कि इस तरह डायरेक्ट दे दिया और आपने लगा दिया। यदि आपको फाउंडेशन इसका क्लियर है कि ओके व्हेन माय नंबर इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म, why I take SCF, you know, when I have to calculate LCM, why take I LCM in the numerator, SCF in the, इसके behind कुछ logic है, and that we will discuss in the next class. So this is what I have to say. So I'm expecting, we have already shared the study material today with our CSAT batch and the Tucker series batch. Please go through that study material and practice the, I would recommend you to practice Panchasutra 4 and 5. पंचसूत्रा 4 and 5 जो टेस्ट हुए हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। सीसेट का जो पेपर है 2023 का, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और अभी जो टक्कर टेस्ट सीरीज जो ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज है, टक्कर जो टेस्ट सीरीज है उसका सीसेट पेपर 1 हुआ है। यदि आप ये सी व्हाट आई एम क्लेमिंग, इफ यू कैन सॉल्व जो टक्कर सीसेट टेस्ट पेपर 1 में अप्रोक्सीमेटली 50 to 55 क्वेश्चन थे क्वांटम रीजनिंग के, इसमें से यदि आप 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो यूर थ्रू, नोबडी विल स्टॉप यू क्वालिफाइंग सीसेट। सो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम देयर, ट्राई टू रीड द स्टडी मटेरियल, एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will go into the logic of this, and we will take some practice forward. Okay, thank you very much.